Hello everyone. Today we are going to read chapter 4 of Geography, Maps. Before we read the chapter, we have to know about what is map. What is map? Do you know? What is map? A map is A map is a drawing of an area. drawing of an area, Yes. which do not tell us a actual size, but Yes. give us a brief. Map can be big, Good small. morning, ma'am. Good afternoon, beta. And map is a Yes. easy to In this carry. in this chapter we will read definition and usefulness of map, different types of map, scale, symbol and directions, and components of map, sketch and plan. Earlier you have read about the globe. In this chapter you will study about maps, their types, usefulness and many more aspects associated with it. पहले के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है? ग्लोब के बारे में. इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? मैप के बारे में पढ़ेंगे और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. Good afternoon, ma'am. Ma'am, can I read? No, apart from the maps, you will also read about the directions. मैप के अलावा हम डायरेक्शंस को भी बारे में भी पढ़ेंगे. All these things are vital to us and help us evolve basic life skills required in our daily routine. ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ही important है. Now maps. When we want to study only about a part of the earth, a country, a state, city or a village, we need to use a map. जब हमें अर्थ के किसी पार्ट के बारे में, किसी कंट्री के बारे में, स्टेट, सिटी या किसी विलेज के बारे में हमें पता लगाना है तो हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? मैप. A map is a true representation or a drawing of any area of the earth on a flat surface. It's a definition of map. True representation or drawing of any area. यानी मैप है किसी भी एरिया की ट्रू रिप्रेजेंटेशन देता है या एक्यूरेट हमें उसके बारे में नॉलेज देता है. इट इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू अ स्केल. मैप इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल. Map gives us accurate information of an area. It gives us accurate information of an area. They are easy to carry and can help to make comparison between one area and another. अब मैप है जो कैरी करने में भी बहुत इजी होते हैं और हमें किस चीज में हेल्प करते हैं? टू कंपैरिजन बिटवीन वन एरिया और अनदर. एक एरिया या दूसरे एरिया के बीच में कंपैरिजन करने में भी हमारे को हेल्पफुल होते हैं. नाउ वी आर रीडिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप. Several maps are put together in the form of a book, which is called an atlas. Here it is a question: what is an atlas? A book of map is called atlas. The only drawback with map is that they don't show the accurate shape and sizes of continents and oceans, especially as we move towards the poles. अब इसमें एक drawback क्या है कि जो मैप है ना हमें कॉन्टिनेंट और ओशन के एक्चुअल साइजेस नहीं बता पाता है. एक ही ड्रॉबैक है. और जैसे ही हम पोल्स की तरफ जाते हैं. नाउ 3 टाइप्स ऑफ मैप. मैप्स आर ऑफ 3 टाइप्स: फिजिकल मैप, Physical map, political map, एंड थीमेटिक मैप. Yes, maps which show natural features of the earth such as mountain, plateaus, rivers, plains are known as physical. अब फिजिकल मैप क्या होता है? जिसमें हमें जिस मैप के अंदर में हमें उसके फिजिकल फीचर्स, अर्थ के फिजिकल फीचर शो हों, मतलब जिस एरिया के भी हों उसके फिजिकल फीचर जैसे माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज, में फिजिकल फीचर जैसे कि माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज दिखते हैं, उनको फिजिकल मैप्स होते हैं. मैप्स शोइंग डिस्ट्रिक्ट, सिटीज, टाउन, states, countries and their boundaries are called political maps. Which maps show district, cities, towns, states और countries को show करते हैं, वो कौन से हैं? Political map. अब physical map में physical feature show होते हैं और इसमें political. Certain map which provide specific information. और जो मैप हमें किसी चीज के बारे में, जैसे रोड है या रेन के बारे में या ट्रीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, रेलवे के बारे में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं तो उन मैप को हम क्या बोलते हैं? थीमेटिक मैप. लाइक क्रॉप्स, पॉपुलेशन, रेनफॉल, रेलवेज. दीज आर कॉल्ड थीमेटिक मैप्स. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ मैप.
To study any map, we need to understand certain basic concept which are being given below. अब किसी भी मैप को स्टडी करने के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट कौन से रीड करने चाहिए वो नीचे हैं. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और स्केल, डायरेक्शन और कार्डिनल पॉइंट्स, सिंबल और कन्वेंशनल साइंस. देखिए डायरेक्शन और कार्डिनल पॉइंट्स एक ही चीज है, सिंबल्स और कन्वेंशनल साइन भी एक ही चीज है. तो हमें मैप को रीड करने के लिए ये सारी चीजों को, ये कंपोनेंट्स को अच्छे से ध्यान में रखना है. दिस इज अ फिजिकल मैप. देखिए इसमें आपके जो आपका इंडेक्स बनाया होता है उसमें आपके माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, कोस्टल एरियाज, रिवर्स, ये सारे शो हो रहे हैं. यहाँ पे देखिए ये डेक्कन प्लेट्यू है, विंध्या रेंज है, और ये रिवर्स हैं आपकी. देखिए चंबल, गंगा, महानदी, ये हिमालय है, माउंटेन रेंज है, ये कोस्टल एरियाज हैं. तो यहाँ पे देखिए आपका डेजर्ट एरिया शो हो रहा है. तो जो भी मैप आपको मतलब आपके फिजिकल फीचर शो कर रहा है वो आपका फिजिकल मैप होगा. ओके मैम. Now this is political map. You can easily understood by these pictures. India's Yes, map, their states. स्टेट दे शो कर रखे हैं, बाउंड्रीज बना रखी हैं. देखिए तो ये आपका कंट्रीज, स्टेट्स, कैपिटल जो शो करते हैं वो क्या होते हैं, या नेबरिंग कंट्रीज आपकी शो करते हैं. तो वो कौन से मैप में आएगी, आपके पॉलिटिकल मैप. यहाँ पे देखो सारे इंडिया के पूरे स्टेट्स शो किए हुए हैं यहाँ पे. एंड नेक्स्ट इज थीमेटिक. थीमेटिक मैप देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल का मैप है, जहाँ पे बताया हुआ है कि यहाँ पे देखिए आपके इंडेक्स दे रखे हैं कि कहाँ पे ओवर 200 सेंटीमीटर है, कहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है, और कहाँ पे 60 से 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल है, और कहाँ पे अंडर 60 है. तो आपको इंडेक्स में पहले शो करना पड़ेगा कि वो आप एरियाज वैसे ही कलर से मतलब उसको कवर करोगे. यानी जो ये डार्क पोर्शन है यहाँ पे ओवर 200 सेंटीमीटर. देखिए कुछ एरियाज जो डार्क हैं वहाँ पे 200 से ज्यादा है, और ये जो लाइंस वाला एरिया है वहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया है. और ये आपका है यहाँ पे आपका डेजर्ट एरिया है. डेजर्ट एरिया में तो अंडर 60 सेंटीमीटर है, और ये जो आपका पोर्शन है कुछ ये प्लेट्यू रीजन भी है, तो यहाँ पे आपका है 60 से 200 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल होता है. तो अब आपको ये पिक्चर से क्लियर हो गया होगा फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप. यस मैम. yes, ma'am. Now scales. Distances are shown with the help of scale. It is the ratio between the actual distance on the ground and its corresponding distance on the map. अब डिस्टेंसिंग किसकी हेल्प से शो करेंगे, स्केल की हेल्प से. यानी उस पे हम क्या करेंगे, उसका एक्चुअल डिस्टेंस शो करेंगे और मैप पे उसका डिस्टेंस शो करेंगे. उनकी रेशियो दी जाती है. When the area to be represented is large, we use a small scale, but the area is small when we use a लार्ज स्केल. अगर एरिया बड़ा है तो हम स्मॉल स्केल यूज करेंगे, और अगर एरिया छोटा है तो हम लार्ज स्केल यूज करेंगे किसी भी एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए. अब देखिए जो स्केल है उसको 3 तरह से शो करेंगे. रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होगी, जैसे कि 1 रेशो कितना है आपका 10 लाख और 1/10 लाख. मीन्स कि अगर 1 सेंटीमीटर आपका मैप पे है वो क्या इंडिकेट करता है, जो 10 लाख सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड. If 1 centimeter on the map, 10 lakh centimeter on the ground. ये रेशो में जाएगा. सेकंड है statement of scale. In this, the scale is given in the form of a sentence. For example, a scale 2 centimeter is equals to 1 kilometer. यानी अगर 2 सेंटीमीटर मैप पे है तो 1 किलोमीटर ग्राउंड पे होगा. मतलब कि वो बता देते हैं मैप में कि कितना सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना. ये रेशो में शो किया है, रेशो में ऐसे होगा. और अगर सेंटेंस में शो करेंगे तो 2 सेंटीमीटर अगर मैप पे है तो 1 किलोमीटर है जो आपका ग्राउंड पे है. और अब यहाँ पे देखिए लीनियर और ग्राफिकल स्केल इज शोन बाय ग्रेजुएटेड लाइन एग्जिबिटिंग बोथ किलोमीटर्स and meter. It is used for measuring distances between any 2 points on the map with the help of a string ruler or divider. और हम किसी string ruler या divider की हेल्प से भी उनका जो डिस्टेंस है उसको मेजर करते हैं मैप का. ठीक है. अब आ गया हमारा है कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ डायरेक्शन. अब ये देखिए ये हमारे कार्डिनल पॉइंट्स हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. और बीच में देखो ये बीच में इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं आपकी, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट.
A vertical line with an arrowhead generally in the northern part of the map with the letter N. जो vertical line होगी, ठीक है, जिसको लेटर N से डिस्क्राइब किया जाएगा, जो नॉर्दर्न पार्ट में होगी, वो कौन सी डायरेक्शन शो करेगी? नॉर्थ डायरेक्शन. Once you know where the north is, we can easily find out the other direction, namely the east, the west, the north and south. अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में पता होगा तो हम बाकी डायरेक्शन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मतलब अगर आपको किसी भी एक डायरेक्शन का पता होगा, उससे आप बाकी डायरेक्शन के बारे में भी इजीली पता कर सकते हैं. अब ये मैग्नेटिक कंपास की यहाँ पे पिक्चर दिखाई हुई है. इसमें क्या है कि जो मैग्नेटिक कंपास है ना, इसकी नीडल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है और दूसरी इसकी जो बैक साइड है वो साउथ की तरफ पॉइंट करती है. These are referred to as the cardinal points of the compass. Beside these, there are intermediary directions. जो मैंने आपको यहाँ बताया था, ये डायरेक्शन में देखिए आपकी इंटरमीडिएटरी डायरेक्शंस है. जैसे 4 आपके कार्डिनल पॉइंट्स हैं, तो 4 आपकी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी हैं. वो कौन सी हैं? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट. These directions help one to find out the location of places with greater accuracy. ये डायरेक्शन कैसे हेल्प करती हैं? किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट करने में और विद ग्रेटर एक्यूरेसी, मतलब एकदम एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करती है ये जो कार्डिनल पॉइंट्स हैं. A magnetic compass can also be used to find out the directions of a place, as the magnetic needle always point in the north-south direction. अब मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से भी हम किसी भी लोकेशन को या किसी भी प्लेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो उसके निडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा पॉइंट आउट करती है. इफ देयर इज नो इंडिकेटर टू शो द नॉर्थ, द टॉप ऑफ द मैप इज कंसिडर्ड एज अ नोट. अगर कोई इंडिकेटर नहीं हो रहा हो तो हम क्या करेंगे? मैप का जो टॉप साइड है उसको हम नॉर्थ डायरेक्शन लेंगे. नाउ सिंबल्स. While drawing a map, it is not possible to show the actual shape and size of the different features. अब जब हम मैप को ड्रॉ करते हैं तो हम किसी भी फीचर, जैसे कि रोड है, ब्रिज है, मार्केट है, स्कूल है, तो हम इनके एक्चुअल साइज तो शो नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो सारी बिल्डिंग तो बहुत बड़ी होती हैं. तो इसके लिए हम कुछ सिंबल्स को यूज करते हैं. Certain signs and symbols are used to show these features. These are called conventional symbols. तो जो हम कुछ सिंबल्स और साइंस यूज करते हैं, मतलब किसी भी इन फीचर्स को शो करने के लिए, तो इनको हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल सिंबल्स. लुक एट दिस, दीज आर कन्वेंशनल सिंबल्स. इंटरनेशनल बाउंड्री, ये देखिए जिस फॉर्म में इनको बनाया गया, इनको ऐसे ही हम शो करते हैं. स्टेट बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, मेटल्ड रोड, अनमेटल्ड रोड, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, रेलवे क्रॉसिंग. तो ये सारे इनको इसी तरह से हम बनाते हैं मैप में भी, जो ये शो करते हैं आपके डिफरेंट फीचर्स. रिवर को इस फॉर्म में बनाएंगे, ब्रिज को इस फॉर्म में बनाया जाएगा, वेल, टैंक, कैनल, टेम्पल. देखिए इनकी शेप अलग अलग है. चर्च की शेप चर्च के जैसी, मॉस्क्यू, छतरी, तो जहाँ पे ट्रीज हैं, और सेटलमेंट है जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, उसको इस तरह से हम बनाएंगे. ये सिंबल्स हैं जो कि हम मैप में यूज करते हैं उसके फीचर्स को, डिफरेंट फीचर्स को शो करने के लिए. इन फिजिकल मैप, डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स. और डिफरेंट कलर भी यूज किए जाते हैं फिजिकल मैप में डिफरेंट सिंबल को शो करने के लिए, डिफरेंट फीचर्स को शो करने के लिए. ग्रीन कलर इज यूज्ड फॉर प्लेन्स, येलो फॉर डेजर्ट, brown for highlands and mountains, while blue is used to show rivers, seas and ocean. अब देखिए ये पर्टिकुलर कलर भी हमें वही यूज करने पड़ेंगे. ग्रीन प्लेन्स के लिए होगा, और येलो डेजर्ट के लिए होगा, ब्राउन माउंटेन्स के लिए होगा, और वाटर के लिए हम ब्लू कलर यूज करते हैं. These symbols not only make the map easy to interpret but also give a lot of information in a limited space. अब इससे हमें सिर्फ मैप के बारे में तो पता लगता ही लगता है, कुछ चीज की लोकेशन भी पता लगती है, बल्कि हमें लिमिटेड स्पेस के अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं. टूरिस्ट यूजली टेक द हेल्प ऑफ मैप्स टू स्टडी द एरिया प्रॉपर्ली. अब टूरिस्ट भी अक्सर मैप यूज करते हैं, क्योंकि जो भी अननोन एरियाज होते हैं वहां पे जाने के लिए हमें मैप की हेल्प तो चाहिए ही चाहिए.
Map use a variety of signs which any traveler can easily understand as they are internationally accepted signs and symbol. अब मैप में variety of signs यूज किए जाते हैं और ये किसके लिए इजी हो जाता है? ट्रैवलर के लिए इजी हो जाता है अगर ये जो साइंस और सिंबल है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, यानी इंटरनेशनल लेवल पे उसको एक्सेप्ट किया हो गया हो। तो मतलब सब जगह पे इंटरनेशनली वही साइंस और सिंबल यूज किए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ इंटरनेशनली उन साइन और सिंबल को एक्सेप्ट होना चाहिए, तभी हम जो कोई दूसरे ट्रैवलर्स हैं जो सेम कंट्री से बिलोंग नहीं भी करते हैं तो वो भी इजीली इस मैप को रीड कर सकते हैं। Actually, there is an international understanding for using the same symbol to show certain specific feature in the same manner. तो इस तरह से जो इंटरनेशनली हम सिंबल्स को यूज करेंगे तो सेम मैनर में होंगे तो वो इजी हो जाएगा हमारे लिए कि हम उस मैप को इजीली रीड कर सकेंगे। स्केच, व्हाट इज अ स्केच? अ रफ ड्राइंग ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड अ स्केच। हमने ऐसे ही किसी भी एरिया की कोई ड्राइंग बना ली जो हमारी मेमोरी बेस्ड हो, हमें ऐसे आइडिया से हम बनाते हैं, उसमें स्केल का यूज नहीं होता है। A rough drawing of any area based on memory drawn without a scale is called a sketch. ठीक है, क्या है? रफ ड्राइंग, किसी भी एरिया की रफ ड्राइंग जो बिना स्केल की हेल्प से बनाई जाती है, जो मेमोरी बेस्ड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केच। It helps to locate or show places which we need to visit. We often find sketches drawn on wedding cards so as to make it easy for the guest to reach the venue. अब क्या है कि स्केच की हेल्प से हम मतलब प्लेस को लोग जल्दी लोकेट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। जैसे आजकल शादी के कार्ड पे भी कुछ वेन्यू के लिए कुछ स्केचेस ड्रॉ किए जाते हैं ताकि उस जगह को इजीली ढूंढा जा सके। डायरेक्शंस एंड डिस्टेंसेस आर शोन इन द स्केच बट नो स्केल इज यूज। अब उसमें स्केच में देखिए डायरेक्शन भी होंगी और डिस्टेंसेस भी शो होंगे लेकिन स्केल का यूज नहीं होता है। इन दिस वे अ स्केच गिव्स अस ऑन ओवरऑल आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस। यानी इस तरह से हमें जो स्केच है एक ओवरऑल आइडिया देता है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा लेकिन आइडिया दे रहा है हमें किसी भी जैसे प्लेस के लिए। नाउ देखिए यहाँ पे स्केच बनाया गया है, ये एक आप जैसे किसी ये कोई सीन है कोई लोकेलिटी का, तो वहां पे ऐसे आइडिया से दे रखा है कि किस तरह से यहाँ पे चर्च है या जो टेम्पल है या जो रेजिडेंशियल एरिया कहाँ है, ये वेल है, वो टैंक है। तो इस तरह से एक स्केच से आइडिया बनाया गया है। नाउ प्लान, मैप शो सेवरल फीचर्स बट नो मैप शो द डिटेल ऑफ बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर। अब जो प्लान है वो क्या है? मैप हमें बहुत सारे फीचर शो करता है लेकिन अगर हमें किसी बिल्डिंग के लिए का मैप बनाना है तो उसके लिए हमें प्लान की जरूरत पड़ेगी। हम स्केच से काम नहीं कर सकते, उसमें हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए हर रूम की, कोई बाथरूम की या जो भी हम उसके अंदर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अ प्लान इज अ ड्रॉइंग विच शोज द लेआउट ऑफ अ बिल्डिंग। अब प्लान क्या है? इज अ ड्रॉइंग विच शो द लेआउट ऑफ अ बिल्डिंग। बिल्डिंग का लेआउट शो करता है, वो होता है प्लान। इट्स अ ड्रॉइंग ऑफ एनी स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल विद ऑल द नेसेसरी माइन्यूट डिटेल्स। ये किसी भी स्मॉल एरिया, किसी भी हॉस्पिटल, बिल्डिंग, स्कूल, घर, किसी का भी हो सकता है, तो हमें ये माइन्यूट डिटेल्स देता है, मतलब छोटी से छोटी डिटेल भी हमें उस बिल्डिंग के बारे में देगा। It is used by architects who design houses. We can use it to show the actual sizes of rooms along with doors, windows, almirahs, etc. अब ये इसको यूज करते हैं आर्किटेक्ट किसी भी मतलब बिल्डिंग का जो एक्चुअल साइज किसी, चाहे वो रूम का है या डोर का है, विंडो का है, अलमीरा का है, इनके लिए। अ प्लान इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू अ स्केल, लेकिन ये स्केल के इसकी हेल्प से ड्रॉ होता है जबकि स्केच में स्केल की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये देखिए प्लान, ये देखिए एकदम परफेक्ट लाइंस हैं जो स्केल की हेल्प से ड्रॉ की गई है। तो एक्यूरेट है कि कहाँ पे लिविंग रूम होगा, कहाँ पे ड्राइंग रूम होगा, कहाँ पे विंडो होंगी, कहाँ पे ड्रेसिंग होगा, जो भी है। तो आपको इसके लिए प्लान की जरूरत पड़ती है। नाउ इंपॉर्टेंट टर्म्स, मैप। व्हाट इज मैप? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ पेपर। मैप क्या करता है? अर्थ सरफेस की रिप्रेजेंटेशन देता है, यहाँ तो इसके एक पार्ट की पेपर पे देता है, इसके पार्ट की भी या पूरे की भी दे सकता है।
Atlas, a collection of maps in the form of a book. Book of map is called a atlas. Cardinal points, 4 main points, और जिसको आप 4 main direction बोलोगे, these are cardinal points. Conventional signs or symbols, universally accepted sign or symbols drawn on map to represent certain feature. यानी universally जो sign और symbol accept किए जाते हैं उनको बोलेंगे conventional sign और symbols, जो हर map में होंगे. Sketch is a drawing not made according to scale and showing only limited feature. जो स्केच क्या है, स्केल की हेल्प के बिना ड्रॉ किया जाता है, जिसमें लिमिटेड फीचर होंगे. और प्लान, ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया बाय यूजिंग ए वेरी लार्ज स्केल शोइंग माइन्यूट डिटेल्स. और ये क्या है, किसी एरिया की ड्राइंग ऑन अ लार्ज स्केल एंड शोइंग माइन्यूट डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स भी शो करता है. स्केल, द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप टू द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. स्केल क्या है, रेशियो ऑन द मैप एंड डिस्टेंस, इसकी रेशियो किसकी बता रहा है, डिस्टेंस ऑन द मैप एंड डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. अब यहाँ पे देखिए एक फ्लो चार्ट है. मैप इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन और अ डायग्राम ऑफ एनी एरिया ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस. यानी किसी भी अर्थ के एरिया की ट्रू रिप्रेजेंटेशन है. अ मैप इज ऑलवेज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द स्केल. जो मैप है वो अकॉर्डिंग टू द स्केल ड्रॉ की जाती है. Several maps put together in the form of book is called an atlas. We have already read about this. Physical map, political map, and thematic map. Map showing natural features of the earth such as mountain. You easily know mountain, rivers, plateau, plains. These are called physical. And political, which map shows the state, districts, towns, cities, countries, and their borders are called political map. ठीक है? Neighboring countries जो आपके हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट, टाउन और स्टेट को शो करता है, वो आपका पॉलिटिकल मैप. और थीमेटिक मैप में जो पर्टिकुलर किसी के बारे में हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि रोड है, रेलवे है, स्ट्रीट है, रेन है, तो वो होता है आपका थीमेटिक मैप. कंपोनेंट्स ऑफ मैप, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, स्केल ऑफ मैप, डायरेक्शन और कार्डिनल पॉइंट्स, सिंबल और कन्वेंशनल साइन. All these 3 components are essential from the point of view of the clarity and authenticity. ये जो components है ना, ये बहुत ज़रूरी हैं किसी भी मैप के लिए कि वो मैप कितना सही है, उसकी authenticity चेक करने के लिए. और इन components की हेल्प से क्या मैप को स्टडी करना ईजी हो जाता है. Now, a drawing of an area without any scale is called a sketch. किसी भी एरिया की बिना स्केल की हेल्प से अगर हम ड्राइंग बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ स्केच. एंड प्लान इज द लेआउट ऑफ एनी बिल्डिंग डिस्प्लेइंग द डिटेल्स एंड स्ट्रक्चरल फीचर्स. और जो प्लान है वो किसी भी बिल्डिंग का लेआउट है जो उसके जो डिटेल और स्ट्रक्चरल फीचर, यानी उसकी पूरी डिटेल की डिटेल बताता है हमें उसके बारे में, और उसका कैसे उसको कंस्ट्रक्ट किया गया, उसका जो स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी इंफॉर्मेशन देता है. तो ये सारे इस तरह से आपको ये सारे पॉइंट मतलब रीड करने के बाद में क्लियर हो गया होगा कि स्केल क्या है, प्लान क्या है, स्केच क्या है ना. सबको क्लियर हो गया ये चैप्टर? यस मैम. थोड़ा सा ओके थोड़ा सा हम ये एमसीक्यूज कर लेते हैं. द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप इज नोन एज कार्टोग्राफी. ठीक है, cartography. And people who produce people who draw map are called cartographers. A rough drawing of an area based on memory is called a sketch. जो memory पे based होते हैं. The map which provide information about roads, thematic map. जो किसी particular specific feature को show करते हैं, these are called thematic. To build a school, one would need a plan. कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए हमें प्लान चाहिए. बेटा put your mic on mute. Someone's mic is creating disturbance in the class. An instrument used to show direction, compass. The 4 main directions, cardinal points. Map showing mountains and plains, physical map. Book containing map, atlas. Map showing boundaries of states and countries, political map. Now these are the true false. Please put your mic on mute. It's create disturbance in the class.
My voice is echoing the class. The symbol used to show the various directions are known as conventional sign. False. If a map doesn't show the cardinal direction, then the top of the map is considered as northeast. False. The magnetic needle of a magnetic compass always point in the north-south direction. Yes. True. A scale is used to measure the distance between 2 points on the map. Yes. True. A sketch can be used to show the actual sizes of room along with doors, almiras, and windows. False. Okay. False. Now, a very short question we also discuss in this class. Define atlas. Atlas is a book of map. Book of maps. What are the different kinds of map? Political map, physical map, physical math, and thematic map. map. Yes. What is the use of a plan? To know the actual size of the place and Yes. the To know the accurate drawing of a building or proper layout of a building. What is a magnetic compass? magnetic Which show the north direction. know about direction. North direction. Why is the symbol N always marked on a physical map of India? because Because we can find it was from Yes, it represents the north direction. Okay. What is a sketch? without sketch is a rough drawing of a Yes. place Without using scale. a scale. Yes, drawing of an area without scale is called a sketch. I thought this chapter is clear to all. yes, ma'am. Okay, there is no confusion. Yes, ma'am. Okay. Bye, ma'am. Wait.